Now coming to the topic which is slated for now. Rabia Khan, mother of Jia Khan. Jia Khan, you all know, was a very promising actress who died in a very unfortunate situation under mysterious circumstances. Her mystery, the mystery of her death, still haunts a lot of people, still continues to be a mystery, because it was said that she died of suicide, but it could not be completely with full established that it was. Thank you so much, ma'am. Thanks for joining. That's Rabia Khan, mother of Jia Khan, joining from London. She is London-based. And am I right, ma'am? Right? Yes, yes. Okay. So she is London-based and she has been traveling to India. You are present speaker, ma'am, because I can see. Pardon? Is the speaker of your phone on by any? Your voice is breaking. Yeah, is the speaker of your phone is on? Speaker is on? Yeah, my speaker is on. Okay. Do you have an earphone or a headphone? Anything? No, I don't have. The speaker of my phone is. Doesn't matter. So it doesn't matter. So basically, she is London-based and she joins on my request basically to talk about the Sushant Rajput case. Obviously, there is a history which is there. Which is unfortunate history. She lost her daughter, a very promising actress. Jia Khan, a lot of people must have seen her in Nishabd is a movie that she did with Amitabh Bachchan. And it was a fantastic movie. I've seen it. She acted brilliantly. And to lose her at such a young age, such a promising actress, was sad. So thank you so much, ma'am, for joining. And the first question, you were talking about the fact that the reason why you are here is because you find a lot of similarities between Jia Khan case and Sushant Singh Rajput case. What are the similarities and why are you convinced that there are two cases which are running almost parallel? Yeah. हिंदी इंग्लिश मैम जिसमें बोलना चाहें आप बोल सकते हैं हमारे ऑडियंस इंग्लिश में और हिंदी सी सबसे पहले तो जब मुझे खबर मिली थी तो I came to know about his demise. I was shaken because I did follow up a little bit that he was very talented, he had many hobbies, he was very much interested, and he had a dog, he had got his whole full life, you understand. So he had many things he could divert from one thing to the other. So his life was not boring. Same way, Jia's life was not boring. So these two are intellectuals. They came, they studied, they have qualified themselves in life, and they reached a ground like Bollywood where the competition is very tough. Now these people are already used to tough competition because colleges and universities are not an easy game. So do you understand me? Yes, Bollywood is tough, but they knew how to deal with it. Now, secondly, the way their case was handled from the very beginning, like my daughter, I will speak about my daughter. I did follow Sushant. My daughter's case, within 2 hours of her passing away, the police announced that it is a case of suicide. Who told them? They had not even reached my house. And the first officer who came to the house, he observed everything and he said, it's a foul play. यानी कि ये तो मर्डर लगता है. जब आपको ये मर्डर लगता है तो फिर आपको किसने कहा है कि उसको मर्डर के एंगल से ना देखिए? तो आज 7 साल के बाद में मुझे ये पता चलता है कि वहां पर पुलिस क्या एविडेंस को ढकने आई थी. मुझे तो इस बात का की शिकायत है कि उसमें भी यही सिमिलैरिटी है. यस, उसमें भी यही सिमिलैरिटी है. आप उनका फिर सुशांत सिंह के केस का मुझे इतना मालूम नहीं है कि बस एक ग्रीन दुपट्टा सा नजर आ रहा था जो बड़ा सा मैं बताता हूँ. सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है. उनकी बॉडी मिलने के बाद उसके बाद बॉडी एक मैसेज आ गया था और उसमें कई सारे मिसिंग लिंक्स और उन मिसिंग लिंक्स के कारण ये बैंक कर रहे हैं कि इसका सुसाइड एंगल से नहीं बल्कि मर्डर एंगल से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि मिसिंग लिंक्स बहुत सारे हैं. उसको लेकर कई सवाल हुए लेकिन सुशांत के केस में सुसाइड नोट भी नहीं और इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिया खान और सुशांत सिंह के केस में सिमिलैरिटीज हैं जो आप भी कह रहे हैं. प्लीज गो अहेड. आप खुद देखिए जो जैसे कि जो पुलिस साइट पर आई थी उसने देखा कि उसके यहाँ पर एक इंजरी मार्क है. उसकी इंजरीज बिल्कुल उस दुपट्टे से कंसिस्टेंट नहीं है. दुपट्टे से ये इंजरी आएगी नहीं. उसने
का कड़ा या कुछ तो नहीं लगा, तो उन्होंने कहा हमने तो हाथ ही नहीं लगाया है। तो अब सुशांत की जो मैंने इंजरी फोटोग्राफ में देखी है, और उसकी आंख ब्रूस्ड आंख है, चीक्स के ऊपर भी उसको कुछ ब्रूसेस हैं, और गले में जिस तरह का पट्टा है, मैं कहती हूँ कि पुलिस को रिकंस्ट्रक्ट करके देख लीजिए कि अगर ये होगा कि नहीं होगा। आपने रिकंस्ट्रक्ट किया नहीं है, और अगर मलमल का दुपट्टा है या उसकी बेडशीट है या उसका कुर्ता है, ऐसे मार्क्स तो कभी आएंगे नहीं। ऐसी रेगुलरिटी से जो पैरेलल रन कर रहे हैं वो तो होगा ही नहीं कभी भी। अगर होगा तो आप मुझे करके दिखा दीजिए। हमें तो फैक्ट्स देखने हैं, हमें तो कहानियां नहीं सुननी है। इतनी कहानियां उछल रही हैं जैसे कि नामे जाने बॉलीवुड से लोग आ जाते हैं आपके फ्यूनरल पे, सीधा ऐलान करते हैं डिप्रेस्ड। अरे भैया कहाँ से डिप्रेस्ड है, बच्चा तो डिप्रेस्ड ही नहीं था। ये कहानियां कहाँ से निकल रही हैं? तो ये ऐसा लगता है जैसे सबको डेजिग्नेटेड किया गया है कि पुलिस के अड्डे को संभाल लो, वो कहेंगे सुसाइड है, दूसरे संभाल लो, वो आके कह देगा डिप्रेस्ड है, तीसरा ये कर देगा वो। तो ये बिल्कुल ऐसी सिमिलैरिटीज मुझे नजर आए हैं कि मुझे खुद अपने 7.5 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था, वो पूरा जो सीन है वो मेरे आंखों के सामने आ गया। हम लोगों की तो बड़ी हालत हो गई ये देख के और सुन के कि ये कब होश आएगा सबको कि कितना आप धुआं डाल रहे हैं लोगों की आंखों में, कितना आप धोखा डाल रहे हैं कि क्या हम लोग इतने बेवकूफ हैं? हमारी बच्ची के उसमें सारे कमरों में पंखे हैं, उसके अपने कमरे में पंखा है, उसके अपने कमरे की खिड़कियां इतनी लो है, फर्स्ट फ्लोर का मकान है, स्लाइड विंडो चल रही है, कोई ग्रिल्स नहीं है। पुलिस ने ये कुछ लिखा नहीं है पंचनामा में। और आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी बच्ची के कपड़े मिसिंग हैं, तो हम तो स्टेयर कर रहे हैं। अरे भाई हम दोबारा पूछ रहे हैं कि भाई पता लगाइए, वो ऑफिसर तो लेके नहीं चला गया। कहता हाँ पता लगा लेंगे। इस तरह के तो ऑफिसर हमसे बात करते हैं। सो आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये एक ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई कोई कॉन्स्पिरेसी है, पहले से कोई प्लानिंग की जा रही है कि अब बस ये करना है और इसको इस तरह संभाल लेना है। तो ये सारी प्लांटेशंस जो शुरू हो जाती है ना, इससे मैं कह रही हूँ सीबीआई की इंक्वायरी करानी चाहिए, पर सीबीआई की भी वो भी सोच समझ के, क्योंकि हम भी अभी सीबीआई के साथ ही हैं, हमें भी कोई आसान रास्ता नहीं है। हम 6 साल से लड़ रहे हैं और हमें भी अभी पूरी तरह से आंसर्स नहीं आए हैं। हमारे पास भी सीबीआई की काफी वो हैं, शिकायतें हैं कि हमारी सीबीआई को क्यों रोक दिया गया है, क्यों उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रोक ली है। इस बात पे मैं आपसे जरूर बात करूंगी। ओके मैम, ये बताइए कि इस केस में आपके केस में इस केस में फैंस चाहते हैं कि सीबीआई को पकड़ लिया जाए, क्योंकि ये बार-बार कई लॉयर्स आए, उन्होंने कहा कि उसमें एविडेंस लॉस हो जाते हैं, उसमें विटनेसेस कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इसीलिए इनको अभी आप सीबीआई को हैंड ओवर कर दीजिए। देखिए जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि आपने आपके केस में तो कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाया, आपने करवाया, लेकिन ये बताइए कि क्या इतना आसान है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना, और क्या हो जाता है या फिर सुनील साहब, सीबीआई की आप बात करते हैं, तो मैं तो जब इतना लोग डिमांड कर रहे हैं सीबीआई, तो मैं तो उनसे ये कहूंगी कि प्लीज थिंक बिफोर यू विश। यू नो व्हाई? बिकॉज सीबीआई को ही कितनी डिफिकल्टीज हो रही थी कि पुलिस से एविडेंस कलेक्ट करने में। ये केस हुआ था 2013 में, सीबीआई को मिला 2015 में, सीबीआई मांगती रह गई दुपट्टा किधर है, दुपट्टा वेंट मिसिंग। 2017 में पुलिस और सीबीआई ने कुछ एविडेंसेस कोर्ट में दिए हैं। आज जब मैंने बड़ी दिल्ली में जाके डीसीबीआई और जॉइंट डायरेक्टर से बात की और कहा कि क्या हो रहा है देखिए हमारे केस के अंदर, तब जाके उन्होंने अब डिमांड की है कोर्ट में कि वो लिगेचर, वो दुपट्टा दीजिए कि हम फोरेंसिक के लिए भिजवा दें। आप बताइए सीबीआई के पास में इसका मतलब मुंबई पुलिस ने वो एविडेंस कलेक्ट नहीं किए या हैंडओवर नहीं किए सीबीआई? हैंडओवर नहीं, आपने, मैं कहती हूँ सीबीआई को हैंडओवर अगर नहीं भी किए और नहीं दे रही है, तो सीबीआई का भी तो बनता था कि आप जाइए हाई कोर्ट के पास में और डिमांड कीजिए।
और उनसे इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके पर भी तो हाईलाइट कीजिए थोड़ा बहुत। वो दुपट्टा 2017 में सबमिट हुआ है और हमने तो देखा नहीं है कि हकीकत में वो राइट लिगेचर है क्योंकि जब मैंने ये केस खोला था, ये केस बंद हो चुका था, अक्यूज भी एक्विट हो गया था। ये जब केस हमने खोला है तो आई रिमेम्बर ड्यूरिंग दैट टाइम तो जज ने पूछा पुलिस से कि कैसी पाई गई थी, किस तरह लड़की दिखी थी। तो उन्होंने इधर उधर देखा और उनको मालूम नहीं, उन्होंने कहा रस्सी थी। तो हमारे काउंसलर ने फिर कहा कि नहीं, रस्सी नहीं थी, ये मलमल का दुपट्टा था और इस तरह का दुपट्टा था। तब जाके फिर जज ने कहा कि इसकी कार्रवाई फिर से की जाए। उसके बावजूद बहुत सारे गैप्स हैं जी, गैप्स जो है अगर हैं तो क्या ये मुंबई पुलिस के केस में सिर्फ गैप हो जाते हैं या केवल सुशांत के केस में या देखिए सबसे पहली सिमिलैरिटी जो दोनों जुहू पुलिस और ये बांद्रा पुलिस जो भी है उनकी सिमिलैरिटी यह है कि इस केस को बगैर कार्रवाई किए अगर आपको कोई बॉडी लटकी नजर आ रही है तो आप सोचेंगे सुसाइड हो गया। पहले उस पर कार्रवाई कीजिए और लोगों को कहिए कि ठहर जाइए, पहले हमें कार्रवाई करने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि क्या हुआ है। आप पहले ही अगर पुलिस ही बयान दे दे कि ये सुसाइड और फिर सुसाइड के नजरिए से आप चलेंगे तो फिर आप उसी के पर ही अटके रहेंगे ना। आपकी सुई मेरी सुई 7.5 साल से वहीं तक अटकी हुई है कि बस किसी तरह साबित कर दे ये सुसाइड है। किसी तरह मीडिया को बोलो कि कुछ उछाले, फला को बोले कुछ भाई देखिए सारी की सबकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट वी नो हाउ टू डील। डू यू अंडरस्टैंड मी? सुशांत सिंह न्यू हाउ टू डील विथ इट। ऐसे बड़े बड़े कलाकार ऐसे नहीं बन जाते हैं। माई डॉटर जिया खान न्यू हाउ टू डील। they had backup plans, they have got future plans। अगर ये नहीं चल रहा तो दूसरा है। उन्होंने फालतू में पढ़ाई नहीं की है। वो सुशांत सिंह इतना कमजोर दिमाग का नहीं था और ना ही मेरी बेटी इतनी कमजोर दिमाग की थी। ये मैं आपको कई एग्जाम्पल से बता दूं कि वो कमजोर दिमाग का नहीं है। जो म्यूजिक प्ले कर रहा है, जिसके घर में कुत्ता है, जिसकी लाइफ स्मूथली चल रही है, जो सुबह वॉक पे गया। डिप्रेस्ड कौन होता है? जिसका कोई दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को, ना कुत्ते को हाथ लगाने को, ना म्यूजिक सुनने को, ना वॉक पे जाने को, ना सूर्य नमस्कार करने को, ना कोई दुआ पढ़ने को, ना किसी को हेलो हाई करने के लिए। ये लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जिनका दिल नहीं करता खाना खाने को। इसको कहते हैं डिप्रेशन। ये नहीं कि आप वो डील नहीं कर सकते। आप तो डिप्रेशन को फ्लू की तरह समझते हैं कि हमें फ्लू हो गया यानी डिप्रेशन हो गया। लोज एंड हाइज होती हैं पर डील करना आता है। आई एम सॉरी, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी कह देते हैं, पता नहीं अपनी कहानियां लेकर आते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन देयर एजुकेशन और इन देयर नॉलेज, बट जो मैंने देखा है कि आई हैव सीन रियल डिप्रेस्ड पीपल। जो टैलेंटेड लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं, दे डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी, दे आर शट फॉर मंथ्स एंड वीक्स। They are not going to be talking to their sister and their mother and say, hi, hello, I'm coming and I'm having an exciting time. I've made all the plans. And my daughter, that very day, went with me to buy jewelry. That very night, her sister was coming. CBI has found so many things. Their own charge sheet does not support a suicide story. I can give you 200 points on that. So I will say, Sunil Saab, Sushant Singh was not depressed. Please cut that out. Yes, nepotism is happening. Yes, bullying is happening. Yes, everything. Uske bawajood, he knew how to deal with it. His work spoke in volume. And people were taking him because he was the heart of the youth. People were taking because he had a natural element of talent. People were taking Jia also. My daughter had 6 films. Did police say? Come out with that? Oh, she has got, CBI has come out that Jia had signed 3 films that night. Jia's sister was coming. She was very happy. Do you understand me? That when I got the expert opinion, तब जाके CBI थोड़ी घबरा गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया है? तो जल्दी से चार्जशीट फाइल कर दी। पुलिस की चार्जशीट में क्या था? कोई तस्वीरें नहीं है जिया की, कोई कॉल लॉग्स नहीं है, कोई ब्लैकबेरी मैसेजेस नहीं है, कोई टेक्स्ट मैसेजेस नहीं है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा जज कहेगा ये किसकी, कोई मेल या फीमेल की बात कर रहे हो? हमें तस्वीर तो दिखाओ। ये चीजें तो चार्जशीट में ही नहीं थी और आपने चार्जशीट लगा दी। किसके प्रेशर पर? आई एम सॉरी, ये तो बिल्कुल लगता है कि जैसे कि कोई
बनाई हुई खिचड़ी है और बड़े बड़े लोग इसमें अपने हाथ धो रहे हैं। मैम ये कहा जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत victim or he died because he could not handle the pressure. I am sorry. I am sorry. I will take. I am sorry. I can write it in blood. It was never that. उसके पर yes, he must be getting death threats. But that does not mean कि he will go. आप उसकी पिक्चर्स देख लीजिए। सी आदमी तो चला गया, मेरी बेटी भी चली गई, पर एविडेंस क्या रहते हैं? एविडेंस स्पीक इन वॉल्यूम। आपके फोटोग्राफ्स, आप फोटोग्राफ्स से रिकंस्ट्रक्ट करा लीजिए ना। हमने तो रिकंस्ट्रक्शन करवाया एक्सपर्ट से, हमने तो सब कुछ करवा दिया। हमने जब उनको दे दिया तो उनके छक्के छूट गए कि अरे बाप रे, ये तो सब कुछ, ये तो हमारा काम करके लेके आ गई है। हमने फिर कोर्ट में कहा कि हमको ब्लैकबेरी दे दीजिए, हमको दे दीजिए इंस्ट्रूमेंट, हम वो भी FBI से करवा के आपको दे देंगे, आपका पूरा काम हम कर देते हैं। लो जी, आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता। सो सुशांत सिंह के साथ में आई एम सॉरी, हम जनता खड़े हैं, हम खड़े हुए हैं। अगर आज उनकी फैमिली नहीं है उनके साथ में, फॉर एग्जाम्पल, मैं उनको जरा भी ब्लेम नहीं करूंगी। क्यों? मैं 5 महीने तक मैं नहीं बोल पा रही थी। 5 महीने मैं कोई एक पेपर, एक जिया की का एक कपड़ा नहीं, किसी चीज को हाथ नहीं लगा पा रही थी। हम लोग इतने नम हो जाते हैं, हम लोग इतने डिसेबल्ड हो जाते हैं, और उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। उसका फायदा इनकी सिंडिकेट मीडिया उठाती है। उसका फायदा कुछ गिने चुने लोग उठाते हैं जो हाई सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। उसका गिना चुना वो लोग अपनी पूरे फेवर्स लेते हैं उन लोगों से जिनको ये फेवर कर चुके हैं। So इसीलिए there are many similarities in my daughters and Sushant Singh. And Sushant Singh case is a case of murder. It should be given to SIT or something under the supervision of Supreme Court or under the supervision of High Court. This is what I'm going to say, and this is my prayer to everybody. Okay, ma'am. In Riya's case, the CBI investigation को इस केस में आपको लगता है कि बगैर कोर्ट जाए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो जाएगा? बगैर कोर्ट जाए, मुंबई पुलिस ने कंक्लूड कर दिया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंक्लूड कर दिया सुसाइड है। शिवसेना जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चला रही है उसने का आर्टिकल लिखा है कि कहा है कि इसी के सुसाइड है। बिहार से वो आता है, बिहार से वो आता है, बिहार गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज साइलेंट। अरे हम लोग तो बोल रहे हैं, हम लोग काफी नहीं है, हमने ही तो खड़ा किया है लीडर्स को, हम ही लोग हैं ना सब। हमारी आंखें नहीं है, हमारी अक्ल नहीं है, हम लोग सब इतने बहरे, अंधे और डम है, हमारी इंटेलिजेंस नहीं है। आज मैं उनकी फैमिली को कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि उनको किस दर्द से वो गुजर रहे होंगे। मेरी 2 बेटियां और हैं, दोनों बेटियां आज तक अपनी बहन के लिए तड़पती हैं। हम आज तक हर रोज मैं रात को कैसे सोती हूँ वो मुझे मालूम है, किसी को मालूम है? मैं यहाँ से फ्लाई करके जाती हूँ एवरी टाइम, ठीक है, लंदन से मीलों दूर। पता चलता है वो आज हियरिंग नहीं है क्योंकि जज हॉलीडे पे है, फिर आज हियरिंग नहीं है कि कुछ पोस्टपोन। क्या हो गया कि वो भैया अक्यूज नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, तो एक दफा जज ने, मुझे याद है, कहा कि वो कोई प्रिंस नहीं है, उसको बोलो आइए। ये आइए, बेचारी लंदन से ड्रेंच्ड पूरी बारिश में बुरी भीग कर यहाँ पर बैठी हुई है और वो वहाँ अपने बेडरूम में बारिश से डर के बैठा हुआ है, उसको इधर बुलाइए। बड़ा गुस्सा हो गई थी वो, बहुत नाराज हुई। ऐसे कई दफा हुआ है, या तो प्रोसिक्यूटर नहीं आए हैं या तो फिर उनके लॉयर नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज। कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ मैं चलती रहूंगी। जी सॉरी, केवल लोगों के लड़ने से देखिए, हर साइकोलॉजिस्ट कहता है कोई बात आप बोलते रहिए, लग जाएगी, किसी ना किसी को तो लगेगी। आप खटखटाते रहिए, कोई ना कोई तो दरवाजा खोलेगा। ऐसे चुप बैठ के रहने से तो यू आर क्रिएटिंग अ टेररिज्म इन बॉलीवुड। बॉलीवुड एक टेररिज्म का मैदान हो गया, जिसको हम चाहेंगे वो रहेगा, जिसको हम नहीं चाहेंगे उनको हटा देंगे। और जो हमारे साथ में जो स्ट्रेंथ दिखाएगा, जैसे सुशांत ने दिखाई, तो बस उसको तो अलग इधर कर देंगे। भैया ये तो दादागिरी हो गई, ये तो पूरी दादागिरी हो गई है। तो फिर आप देखिए, आप खुद ही देखिए अपनी फिल्म में, हम तो नहीं देखेंगे। हम ही ने आपको, आपके पर पैसा लगा के आपको आज स्टार बना दिया है।
और फिर आज आप हमारे ही बंदों को आप दफा कर रहे हैं इस दुनिया से। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। ये तो एक बहुत शर्म खोर वाली बात है। हम तो बहुत शर्मिंदा हैं इस बात पे। हम दूर से हजारों मील से आते हैं और वहां पर तो भैया हम आते हैं, देखते हैं बिल्कुल एकदम कैजुअल, सारा एटीट्यूड कैजुअल है। तुमने कहा कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो हमारा भी वक्त आएगा, एक ना एक दिन तो सच उभरेगा। सारे शास्त्रों में है कि सच निकलता है, तो हम उसी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि सच निकलेगा। हमारे पास पूरे एविडेंसेस हैं। सीबीआई की भी चार्जशीट डज नॉट सपोर्ट द केस ऑफ सुसाइड, इसीलिए हर चीज ड्रैग हो रही है। कई प्रोसिक्यूटर बदले जा रहे हैं, एक को लेके आते हैं, अगर कोई सही अपने इंडिपेंडेंट माइंड से मुंह खोलने लगता है तो उसको बदल दिया जाता है। ये सब ड्रामा हम देख रहे हैं भाई। तो ये नीड स्ट्रेंथ। क्या हम डिप्रेस्ड हो गए? क्या हम भी सुसाइड कर बैठे हैं? ऐसा मत बोलिए सर। It is humiliation for Sushant's death. To say that he committed suicide is not giving respect. It's a very humiliating thing. Say sorry, sir. I interrupted you. No, इस केस में मैम there is no suicide note number one. तो जो फैन और बेड के बीच का गैप है वो उसके हाइट से कम है। मेरी उसने 2 बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, एक बार बाथरूम के बेड से, फिर उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि दरवाजा अंदर से वाली बात है। ये सिमिलैरिटीज अगेन मेरी बेटी के केस में है। सबसे पहले जब सीबीआई आई तो सीबीआई ने सबसे पहले क्या चीज आउट की कि ये जो ब्रेकअप बुके की कहानी जो लपेटी गई थी पुलिस ने, उसको तो बिल्कुल डिसमिस कर दिया, कहा ये तो पुलिस की कॉन्कॉक्टेड कहानी है। दूसरी बात क्या सीबीआई ने बताया, 6 पन्ने का लेटर जो जिया ने लिखा था उस वक्त लिखा होगा जिस वक्त शी वाज फोर्स्ड फॉर एन अबॉर्शन, राइट? वो कहीं जनवरी के अंदर, ये अभी का नहीं है। तो वो सुसाइड नोट भी उन्होंने कहा ये सुसाइड नोट नहीं है। सिमिलरली सुशांत, वाई जब उसके दिमाग में कोई सुसाइड की बात ही नहीं है, उसने कभी लिखा कि मैं सुसाइड करना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं? या ये तो हियरसे वाली बात हो गई है, इसने कह दिया उसने कह दिया। मैं तो इन बातों पे कभी नहीं जाऊंगी। और मैं कहती हूँ एविडेंस को देखिए, एविडेंस क्या कह रहे हैं। जहां तक मैनेजमेंट ऑफ पीएम रिपोर्ट है, हमारी पीएम रिपोर्ट भी मैनेज की गई है। हमने भी सवाल उठाए हैं जेजे हॉस्पिटल के पीएम डॉक्टर्स के साथ में, आज तक उन्होंने सही जवाब नहीं दिया हमें। हमारा केस अभी तक पेंडिंग है, अभी तक चल रहा है, ड्रैग हो रहा है। अरे खींचो खींचो, पता नहीं, ये तो ऑलरेडी 60 साल की हो गई है, कुछ 10 साल में मर जाएगी, कोई बात नहीं, पर दुनिया तो नहीं मरने वाली है, ब्रह्मांड तो नहीं मरने वाला है, सच तो आएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सुशांत सिंह ने अगर नोट नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे बगैर सोचे समझे जाके सुसाइड कर ले। अरे एक बंदा गया है वॉक पे, आया अपने कुत्तों से खिलाया, जो भी किया, जूस पिया, कुछ भी किया, ही वॉज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। ही डिड नॉट थिंक, ही वॉज नॉट एन इम्पल्सिव गाय। चाहे कितना भी इंसान सेंसिटिव हो, मरना कोई आसान नहीं है। अगर ऐसा इतनी छोटी छोटी बातों पे हो, सबसे बड़े बड़े स्ट्रेस जो लीडर्स के ऊपर जितना बड़ा स्ट्रेस होता है, जितना बड़ा तूफान आता है, तो एक एक करके यू विल कीप ऑन हियरिंग। आज दिन में 10 सुसाइड हो गए, आज 100 सुसाइड हो गए। हिंदुस्तान में जितना कोरोना का जो स्ट्रेस आया था, हमने तो किसी को सुसाइड करते हुए नहीं देखा। लोग अपनी जान बचा रहे हैं। जान इतनी प्यारी होती है सर, और हमारी बच्ची को अपनी जान बहुत प्यारी थी, उसको हमसे बहुत प्यार था, उसकी बहनों से बहुत प्यार था, उसको लंदन से प्यार था, उसको अपने काम से प्यार था। वो लंदन छोड़ के, न्यूयॉर्क छोड़ के बंबई गई है, क्योंकि वाई? बिकॉज मिस्टर बच्चन के साथ उसको फिल्म मिली। डिप्रेशन तो इंडियन एक्टर को लेते तो उससे डिप्रेशन हो जाता, ओहो ललिता के पर फिल्म बनाई जा रही है। उसने कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को लेके, लुक एट हर बोल्डनेस, कि उन्होंने मिस्टर बच्चन के साथ की। वाई? बिकॉज मिस्टर बच्चन इज देयर इज अ लेजेंड वर्किंग विथ हर। कोई आसान है मिस्टर बच्चन के साथ काम करना? क्या उनको फेस करना? ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड की बातें होती हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात होती है। आज हम लड़ रहे हैं, हम भी इंटिमिडेट होते हैं सीबीआई से, पुलिस इंस्पेक्टर से, लेकिन हम भी जबान रखते हैं, हम भी इंटेलेक्ट रखते हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते उनको? उन्होंने बहुत कोशिश की होगी इल्जाम हम पर लगाने के लिए, पर लगाइए, हमको बताइए हमारा क्या इल्जाम है।
हम माँ हैं, हमने पाला 25 साल तक उसको, उसको पाला अपने लाड प्यार से। सुशांत सिंह के पास भी फैमिली है, उसके पास 4 बहनें हैं, उसका सबसे पहले तो उसका अनकंडीशनल लव देने वाला कुत्ता है उसके पास। भाई इतना हसीन, इतना हेल्थी कुत्ता, ना डिप्रेस्ड है ना बीमार है। कुत्ता तो पहले से ही सेंस कर लेता है कि मेरा मास्टर जो है वो बेचारा बहुत बीमार है, मेंटली बीमार है, तो उसको डिप्रेशन होने लग जाता है। हमने भी कुत्ते पाले, हमें मालूम है हाउ डॉग्स डू। अनकंडीशनल लव करने वाला डॉग है, अनकंडीशनल लव करने वाले पेरेंट्स हैं। मुझे ये कहानियां सुन के ना बहुत दुख होता है सर। मुझसे आप ये ना कहिए कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है। सुशांत को मारा गया है। उसके मारने के मोटिव को देखिए। मोटिव है राइवलरी, मोटिव है कंपटीशन, मोटिव है अरे ये हट जाएगा, टैलेंटेड सारे टैलेंटलेस को काम मिल जाएगा, गिने चुने टैलेंटेड वाले हटाओ उनको, हमारे बंदे को घुसाओ। 2-3 फिल्में उसकी छीन ली गई थी, 2-3 फिल्में सुशांत को दे दी गई थी कि, तो फिर आप मुझे बताइए मोटिव तो हजार हैं, उस मोटिव की तरफ क्यों पुलिस नहीं जा रही है? पुलिस 1-2-3 बंदे आ जाते हैं, कहते हैं डिप्रेस्ड, तो उस कहानी को हुक करके बैठ जाती है। दिस इज रॉन्ग ना। पुलिस का तो काम है कि सब एंगल से देखना, सबको चुप कराना, कि जब हम पूरी तरह से तहकीकात ना कर लें तब तक आप कुछ ना बोलिए। मीडिया को भी बोलिए आप शट अप हो जाइए, अगर आप कुछ गलत लिखेंगे हम तुम पर तुमको सू कर देंगे। दिस इज हाउ द पुलिस हैज टू कम। They don't understand the sentiments of the सारा हिंदुस्तान सुशांत को प्यार करता है। क्या वो बेवकूफ है जो सुशांत को प्यार करते हैं? They love him because he touched their heart with his acting. जब इंसान एक गाना गाता है तो कहते हैं उसकी आवाज अगर आपके दिल को छू जाए ना, तो उसका मतलब उसकी आवाज बहुत हसीन आवाज है, वो दिल से गा रहा है। This man, I saw his one film, to be very frank. Recently I saw The Drive. I mean, I thought he's a Hollywood actor. He is a James Bond of Bollywood. लेकिन वहाँ बॉलीवुड के अंदर तो इतने जेफरी एप्स्टीन का नाम सुना होगा, इतने जेफरी एप्स्टीन घूम रहे हैं वहाँ पर, जो पॉलिटिशियंस हो या किसी को या पुलिस ऑफिसर्स हो, हर एक को अपने ग्लैमर से खुश करने को तैयार है। तो फिर भैया यू डू मी अ फेवर, आई डू यू अ फेवर, उसी में बेचारे ये बच्चे मारे जाते हैं। मैं तो इतना ही बोलूंगी बस आपसे। मैम ये जिया के भी कहा गया था। डिप्रेशन बोला किसने? हमें आप बताइए। सीबीआई ने तो अपनी चार्जशीट में सबसे पहले क्या कहा कि साइकोलॉजिकल रिपोर्ट है कि बंदा झूठ बोल रहा है, बंदा कुछ छुपा रहा है, बंदा उस रात की इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, बंदा अपना बीबीएम पासवर्ड देने को तैयार नहीं है, और तो और यही कह रहा है कि ये सुसाइड है। सीबीआई तो नहीं कह रही ना सुसाइड है, यही कह रहा है कि ये सुसाइड है। चार्जशीट पढ़िए। और फिर सीबीआई खुद कह रही है कि ये कहानी जो थी ब्रेकअप की वो कॉन्कॉक्टेड थी, पुलिस की बनाई हुई कहानी थी। और सीबीआई खुद कह रही है 3 फिल्में साइन की थी और आने वाले जुमेरात के दिन यानी कि थर्सडे के दिन, बृहस्पति के दिन वो लंदन जाने वाली थी, और उसी रात को उसकी बहन आ रही है, उसने 4-5 लाख रुपए दिए हैं ज्वेलरी बनवाने के लिए अक्यूज्ड को। अक्यूज्ड वाज सपोज्ड टू गिव इट टू नीलू, और उसी बात पर उनकी बातें हो रही थी कि आपने ज्वेलरी पैसे दे दिए कि नहीं दे दिए, आप मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। उसमें जो झगड़ा फसाद हुआ, सीबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि वो जो 6 पन्ने के लेटर जो नोट जो जिया का पाया गया था, वो जब भी उसने लिखा होगा उस वक्त वो ये जाहिर कर रही है कि शी वॉज इन अ वायलेंट रिलेशनशिप। Do you understand my point? This is what, but उसके बावजूद she went through and she lived. She went to London, she met her family, her mother is there, her sister is coming. All these things तो कहाँ से सीबीआई ने कहा कि वो डिप्रेस थी? सीबीआई ने तो कहा नहीं कि वो डिप्रेस थी। सीबीआई ने तो सारी डिप्रेशन की कहानी आउटराइट फेक बता दी है। अब सीबीआई के ऊपर क्या प्रेशर पड़ा होगा टू से दैट इट इज अ चार्जशीट लगाइए कि इट इज अ अबेटमेंट टू सुसाइड। पर अबेटमेंट के लिए तो उनको ब्लैकबेरी मैसेजेस चाहिए, ब्लैकबेरी पासवर्ड चाहिए, जीपीएस लोकेशन चाहिए, राइट? वो देने को तैयार नहीं है। और सीबीआई को रोका जा रहा कि आप जाके एफबीआई से मत लीजिए। अब जाके वो एम्फसाइज कर रहे हैं कोर्ट को कि हमको दीजिए, हमें भेजना है, क्योंकि हमें सच्चाई की तक जाना, क्योंकि हम नहीं छोड़ने वाले, हम नहीं छोड़ेंगे।
तो अगर सारा हिंदुस्तान भी ना छोड़े ना, अगर सारा हिंदुस्तान भी मिलकर ना छोड़े, द ग्रेट फैंस ऑफ सुशांत सिंह ना छोड़े ना, तो वो आवाज एक आवाज हो जाती है। वो आवाज एक आवाज हो जाती है। निर्भया को जस्टिस कभी ना मिलता अगर सारा हिंदुस्तान ना खड़ा हो गया होता। वो केस भी दरबदर हो गया होता। कहने को सबके आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ उस लड़की बिचारी बच्ची के साथ, आंखों के सामने। प्रियदर्शनी मट्टू को कभी जस्टिस ना मिलता अगर उनके पेरेंट्स लगे ना होते। कहने को मालूम है कि दैट वाज अ केस ऑफ ब्लेटेंट मर्डर। बॉडी अगर आपको दिखती है लटकी हुई, पुलिस का तो सबसे पहला काम है कि इसकी कार्रवाई करना कि ये किसने किया और ये कैसे हुआ। ये बात मिसिंग है। इस पे कोई मीडिया भी नहीं कह रही है, कोई जनता भी नहीं कह रही है कि आप बताइए हमें कि ये किसने किया और ये कैसे हुआ। सुसाइड की स्टोरी लपेटना। और जहां तक सुशांत की बात है कि वो मेडिसिन ले रहे थे, डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे। लॉट ऑफ पीपल टेक अल्कोहल, लॉट ऑफ पीपल टेक अदर एस्पेक्ट्स। इवन इफ ही इज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट इज नॉट गोइंग टू मूव यू ओवर देयर, एंड एंटी डिप्रेसेंट ही वाज नॉट वांटिंग टू टेक, ही वांटेड अल्टरनेटिव्स लाइक योगा, पिलाटेस, मेडिटेशन, राइट? कौन था, कौन प्लांट कर रहा होगा? गो बिहाइंड दैट, फाइंड आउट, डू योर रिसर्च. What is the reason? Who instigated him to that? मैं भी अपने हस्बैंड को अगर कल कहने लगूं, ओ डार्लिंग, तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, 24 घंटे कहना, आई एम काउंसलिंग हिम टू गो टू एंड सी द डॉक्टर। और बेचारा वो मेरे कहने पर एक दफा चला गया, तो यानी कि क्या हो गया, अब डॉक्टर के वहां रजिस्टर हो गया, तो वो गए थे डॉक्टर के पास मिलने, पर ही डिडंट वांट टू गो। एक दफा डॉक्टर से मिलने चले गए किसी के कहने पर डजंट मेक हिम डिप्रेस्ड पर्सन। मैंने ये बहुत सोचा, मैंने हर एंगल से सोचा, एनालिटिकली सोचा है। मैं तो बहुत दूर बैठी हुई हूँ, हजारों मील दूर बैठी हुई हूँ। मुझे तो उतनी खबर भी नहीं है जितनी वहां हिंदुस्तानियों को होगी या आसपास पड़ोस वालियों को होगी। मैं तो कभी मिली भी नहीं बंदे को। लेकिन ये मेरी अपनी इंटेलेक्ट और मेरा अपना जो एनालिसिस है उसके बारे में ये है कि मैं हर तहकीकात कीजिए, हर तरह से सोचिए। मरना कोई नहीं है। अभी मैंने सोचा है डुबकी मार लूं, और मैं डुबकी मार लूं। मी टू का हुआ था, कई लोग डिप्रेस्ड हो गए थे क्योंकि उनको कामों से निकाला जा रहा था। वो कौन वाला भी सुनने में आया था, उन्होंने मीडिया को कह दिया मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। उसने ऐलान किया था, सुसाइड तो नहीं किया था। तो सर प्लीज आप ये सुसाइड की कहानी निकाल दीजिए। पहले हर केस होमिसाइड की नजर से देखना चाहिए, फिर होमिसाइड को ओवररूल करके आप आइए उस पॉइंट पर कि यस दिस वाज अ केस ऑफ दिस बताइए, उसके बाद आप क्या काम करके आइए कि सुसाइड क्या ये मुंबई पुलिस के काम करने का तरीका है जहाँ पे पहले वो कंक्लूड करते हैं और बाद में रूल आउट करते हैं? नहीं सुनील साहब, इस बात पर मैं आपको एक अपना ही तजुर्बा बताती हूँ। उस रात को जिया की स्टाइलिस्ट थी जो कह रही थी सूरज बहुत मारता था, सूरज ने मारा इसको, सूरज ये करता था, सूरज ने उसको अबॉर्शन फोर्स किया था। हमें कुछ नहीं मालूम था ये सब बातें। तो फिर हमने उसको कहा, तो दूसरे जो आसपास बैठे होते, अरे मत बोलो मीडिया है, मत बोलो, ऐसी बातें मत करो, ये बहुत डेंजरस है, तुम बोलोगी तो वो तुमको मार डालेंगे, तुमको तुम्हें मालूम नहीं वो किसके साथ डील कर रहे हैं। तो मैंने कहा वेट अ मिनट, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या हुआ। तो बेचारी ऐसी हिचकियों से वो रो रही थी, उसका रोना नहीं बंद हो रहा था। उस दौरान उसने मुझे ये बातें बताई। हमने ये बात पुलिस को बताई, पुलिस ने उसको बुलाया, पुलिस ने उसको 6 घंटे ग्रिलिंग की। और क्या ग्रिलिंग की कि अब तुमको ये बात तुम कह रही हो तो तुम होशियार हो जाओ, तुम अकेली रहती हो अपनी माँ के साथ, तुम्हारी जान के पर ना खतरा आ जाए। तो अब उसको बताया जा रहा था कि तुम क्या बोलो क्या ना बोलो, उसकी पूरी स्टेटमेंट बदल दी।
ये तो हमारे पास तजुर्बा है। तो आप अगर सोचते हैं कि ये पुलिस जो बुला रही है सब लोगों को, वो ये जानना चाह रही होगी आप कितना जानते हैं, आप कौन सा सच जानते हैं। और अगर आपने कोई सच बता दिया तो फिर वो आपको वार्निंग देते हैं कि देखो तुम ये ना बोलो, तुम ये बोलो, अदरवाइज तो तुम मर जाओगे, अदरवाइज तुम्हारी तो ये हालत हो जाएगी। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे तजुर्बे हैं। हमारे साथ में जो हुआ है, हम इसीलिए मुझे स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ा। मैं हर एक के पास गई, मैंने कहा कि तुमने पुलिस से ऐसा सा कहा है? कहते नहीं, हमने तो नहीं कहा ये। मैंने कहा तुम्हारी तो स्टेटमेंट में ये बात है। कहते हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप स्टेटमेंट, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं कुछ बोल रही हूँ और पुलिस लिख कुछ और रही है, और मराठी में लिख रही है, हम तो मराठी जानते नहीं। तो हमने बोला भैया हम मराठी जानते नहीं, आप इंग्लिश में लीजिए। इंग्लिश में भी लिख रही है, तो इंग्लिश में जैसे कि ब्रेकअप बुके मेरे पास आई भागी भागी, मैडम हमने एफआरआई बदल दी। हमने कहा एफआरआई बदल दी, क्यों भाई? तो कहते हैं कि भाई हमें पता चला वो ब्रेकअप बुके था। मैंने कहा ब्रेकअप बुके ये क्या चीज होती है? तो कहते हैं बस हमें पता चला, आप इसमें साइन कर दीजिए। अब हम लोग गम के मारे डूबे, ऑलरेडी पहाड़ हम पर टूट पड़ा है, हमने साइन कर दिया। हमने सोचा पुलिस हमें पहले ही फोन करके कह रही है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, मैडम विल गिव यू जस्टिस, हम पर ट्रस्ट कीजिए, आप मीडिया को बताइए कि हम पर ट्रस्ट किया जाए और हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल नई वह में कभी पाला ही नहीं पड़ा पुलिस के साथ, हमने कभी देखा नहीं, हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग तो बिल्कुल अनाड़ियों की तरह हर बात बिलीव कर रहे हैं पुलिस को। यानी कि पुलिस कह रहे मेरा नाम तो ट्रस्ट है, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। हमने कहा हम ट्रस्ट करते हैं। हमने ट्रस्ट कर लिया, लो जी हमारी एफआईआर बदल दी। हम ब्रेकअप बुके जो उन्होंने लिखा था उसको सुसाइड के अपनी कहानी को सपोर्ट करने में लगा दिया। तो आप जो 6 पन्ने हमने दिए, जो जिया की बहन ने 5 दिन के बाद में उसके बेड साइड के एक डब्बे के अंदर, वॉलेट के अंदर था। अब कोई सुसाइड नोट लिखे तो वो तो सामने ही रख के जाएगा ना, कि उसकी माँ आएगी देख लेगी, या उसकी बहन आएगी देख लेगी, या कोई भी आएगा देखेगा। ये तो उसके बेड साइड के ड्रॉ के अंदर था। हमने जब पुलिस को कहा देखो आपने तो कार्रवाई भी नहीं की, उसके बेडरूम में उसका बेड का जो ड्रॉ है वो भी हैंडल टूटा हुआ है, उसके तो कमरे में अपना पंखा है, उसके लिए तो बहुत आसान था उसका अपना कमरा, उन्होंने उसके कमरे का भी मेंशन नहीं किया। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, जो कुछ पुलिस को मिला उन्होंने उस सुसाइड वर्ड को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। दैट इज वाई जब हमारा केस जब हाई कोर्ट के पास गया, and I remember my advocate was arguing very efficiently regarding why this case should go to CBI. उस वक्त चार्जशीट में देखा था कि पुलिस ने ना तस्वीरें, ना कॉल लॉग्स, ना ब्लैकबेरी मैसेजेस, कुछ भी तो नहीं शामिल किया था। और जब जज ने खुद अपनी इंटेलिजेंस से या अपनी नजरों से वो एविडेंस को देखा, तब उन्होंने कहा कि इसमें तो हकीकत में कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके वो सीबीआई को मिला। That was a very good homework done by the advocate who represented us, and he made sure that no stone was left in his argument. And तो फिर सुशांत की फैमिली क्या है? सुशांत के सामने देखिए, जो मैंने आपसे सवाल उठाए हैं, सबसे पहले पुलिस को यही करना चाहिए कि इसको होमिसाइड के एंगल से देखिए और होमिसाइड को रूल आउट कीजिए। रूल आउट एवरी क्या मोटिव था, कौन सी राइवलरी थी, किस वजह से, कौन कौन उसके दुश्मन थे, क्या हो सकता है, ऑल दैट वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, बिकॉज दे हैव बीन मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड और कॉम्प्लिसेट। दे आर नॉट डम or they are not lazy. Please don't tell me. They have worked in my case so hard to cover the lid. इतना हार्ड वर्क किया, मुझे लगता है उनकी 24 घंटे की रातें हराम कर दी थी हमने। इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, लेकिन हमने भी उनसे ज्यादा हार्ड वर्क किया। हमने पूरी टाइमलाइन निकाली। The timeline that we handed over to CBI found out कि जिया खान के पास तो उस रात को वक्त ही नहीं था कि वो 6 पन्ने का खत लिखे। तो वो तो सुसाइड नोट ही नहीं था सर। There are many things which is very badly handled. So सबको मिलके lawyer appoint करना चाहिए, advocate, and file a writ petition against the police, against the unfair investigation.
और दूसरी बात, हम तो कोर्ट के पास जा भी नहीं सकते थे। मैं आपको अपना किस्सा सुनाती हूँ। बरसात के दिन थे, मौसम आपको मालूम है, मानसून। हम जाते थे, यहाँ तक कि पुलिस ने मेरी बेटी का नाम भी गलत लिखा, उसका नाम जो नफीसा अली रिजवी था, उन्होंने जिया खान करके विच वाज रॉन्ग, उसको करेक्ट कराने में बड़ा वक्त लगा। हमसे पैसे लिए वीडियोग्राफी, पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के, हमसे पैसे लिए फोटोग्राफ के लिए। फिर हमने मांगना शुरू कर दिया, भैया आपने तो केस शट कर दिया, हमें तस्वीरें दे दो, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो। बड़ी मुश्किल से फिर हमने कहा हिस्टोपैथोलॉजी दे दो। क्यों? क्योंकि देखिए सुनील जी, आज मैंने ये एक्सपर्ट से पता लगाया, so it is not a death by dagger or bullet or something, it is a death by strangulation, asphyxia by strangulation। asphyxia भी कई तरीके के होते हैं, ड्राउनिंग के होते हैं, स्ट्रैंगुलेशन के होते हैं, सफोकेशन के होते हैं, हैंगिंग के होते हैं। अब यहाँ पर इफ इट इज asphyxia, ये वर्ड यूज करते हैं। ओ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया asphyxia by hanging। अरे एक्सपीशिया तो हर एक डेथ एक्सपीशिया से होती है, गला घोटेंगे तो फिर ऑक्सीजन तो बंद हो ही जाएगा। तो एक्सपीशिया बाय स्ट्रैंगुलेशन, नॉट बाय सफोकेशन, नॉट बाय ड्राउनिंग। तो सफोकेशन, उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है, स्ट्रैंगुलेट किया है। दैट इज वाई आंखें पॉप नहीं की है, जबान निकली नहीं है। वैसे तो आप कहते हैं आईज आर पॉपिंग, दिस इज पॉपिंग, लिगेचर इज रनिंग हॉरिजॉन्टल ऑल अराउंड, लिगेचर इज नॉट इन अ वी शेप। जो अब जब हैंग करते हैं तो जहां प्रेशर पड़ता है, जैसे प्रेशर पड़ता है वैसे ही होता है। वो कोई साइन नहीं है ना जिया के ना उसके, इनफैक्ट इंजरी मार्क्स नजर आते हैं, राइट। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है एक्सपीशिया ड्यू टू हैंगिंग लिख दी जाती है, ड्यू टू हैंगिंग। कोरोनर होता है, कोरोनर को पूछना चाहिए, आना चाहिए, क्राइम ऑफ सीन देखना चाहिए, सारी सर्कमस्टांसेस देखकर फिर उसको लिखना चाहिए। इंक्वेस्ट करना चाहिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट से कि इंक्वेस्ट की जाए, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए। नहीं भाई सुसाइड करके इसको बंद करो। ये सब चीजें मिसिंग हैं, सुशांत के केस में भी, मेरे केस में भी। इसी वजह से मुझे इंटरनेशनल पैनल, एक रिव्यू पैनल सेट करना पड़ा, यहाँ पर लॉयर को हायर करना पड़ा, हु क्रिएटेड अ रिव्यू, जो मैं हर एक के साथ शेयर करना चाहूंगी, फॉर देम टू फाइंड आउट द डिस्क्रिपेंसीज ऑफ पुलिस एंड CBI in that charge sheets. That is what we have done, and I have handed over to the CBI, I have handed over to the head of the CBI, I have handed over to the court. Now it has become a public property. Anybody can see it, anybody can share it. You will know exactly why, because the cause of Jia's death has never been established, not even by police, not even by CBI. That is why CBI now wants the ligature from the court to send it to the forensic department to find out कि ये injury इस मसलन, इस soft दुपट्टे से हो भी सकती है कि नहीं। आप बताइए, दादागिरी हो गई है ना, कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चला और आपने उसको बंद कर दिया, चार्जशीट लगा दी एंड अबेटमेंट टू सुसाइड कह दिया। सुशांत के केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, PM रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत died because of suffocation caused by hanging from a height. है ही नहीं ना, caused by hanging from a height। और उसको साइड करके मुंबई पुलिस ने कहा कि वो conclusively establish कर देता है कि suicide, hence we are saying it's suicide। देखिए अब वो एक डॉक्टर को पकड़ना है, अब डॉक्टर को कहना कि तुम वो लिखो जो हम कह रहे हैं, तुम वो मत लिखो जो तुम देख रहे हो। जैसे कि जिया की इंजरीज में कुछ इंजरीज मार्क की गई हैं, कुछ नहीं। वो तो मेरी किस्मत थी कि जो पुलिस ने मुझे तस्वीरें दे दी, क्योंकि हमने पैसे दिए थे तो हमने अपना हक जताया थ्रू द लॉयर, हमने मांगी, हमने लॉयर हायर किया, लॉयर के थ्रू हमने सारा कुछ ऑब्टेन किया। एंड यू कैन गो टू द कोर्ट एंड ऑल्सो ऑब्टेन एवरीथिंग। ये फैमिली का भी और उनके चाहने वालों का भी राइट बनता है, उनकी हर चीज पर ह्यूमन राइट्स का भी राइट बनता है, ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द पुलिस, राइट, थ्रू द कोर्ट ऑल्सो। कोर्ट भी मांग सकती है पुलिस से। तो हमको जब मिल गया तो हमने कहा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि सुसाइड में क्या होता है, दिस इज द पॉइंट दैट आई मिस्ड आउट, कि इट वाज नॉट डेथ बाय डैगर और बुलेट और फायर और एनीथिंग, इट वाज अ डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन, एक्सपीशिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। अब क्या होता है कि अब आप जब स्ट्रैंगुलेट करते हैं तो किस चीज से स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं,
हिस्टोपैथोलॉजी बता देगी कि वेदर दिस इज अ केस ऑफ सुसाइड और होमिसाइड. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बिकॉज वो स्किन की डाइसेक्शन होती है लेयर बाय लेयर, और उसमें पता चल जाता है क्या मटेरियल यूज हुआ था. सॉफ्ट मटेरियल की तो सुशांत की तो कोई सॉफ्ट मटेरियल नहीं नजर आ रहा है. सॉफ्ट मटेरियल तो किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रहा है. देन रही बात, हिस्टोपैथोलॉजी विल टेल वेदर इट इज सुसाइड और होमिसाइड, क्योंकि स्किन के नीचे जो टिश्यूज होते हैं ना वो जाहिर कर देते हैं. नाउ दिस इज द एक्सपर्टीज ऑफ द पैथोलॉजी. वो आप रिपोर्ट मंगवाइए. हमारी रिपोर्ट में सारी हिस्टोपैथोलॉजी की जा रही है, लंग्स की, हृदय की, गुर्दे की, फला की, जो भी हो, पर स्किन की नहीं की जा रही है. ले लिया है, डाइसेक्ट भी कर लिया है, लेकिन भेजा नहीं जा रहा है. दुपट्टा भेजा नहीं जा रहा है डीएनए के लिए, कपड़े भेजे नहीं जा रहे हैं डीएनए के लिए. ये सब क्यों हो रहा है भाई? और फिर डॉक्टर लिख रहे हैं एक्सपीशिया ड्यू टू हैंगिंग. डॉक्टर को कैसे मालूम है हैंगिंग है? डॉक्टर के पास तो लाश आई है. किसने बताया हैंगिंग है? सुशांत के केस में पैर दे रहे हैं, सुशांत के चेहरे पे 5-6 निशान दिख रहे हैं, चोट के निशान हैं, किसी भी निशान. बताइए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहता है उसमें कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है. देयर इज नो एक्सटर्नल इंजरी, हेंस अ फाउल प्ले इज रूल्ड. देखिए, पोस्टमार्टम वही मैं बता रही हूँ. हमारे केस में कुछ इंजरीज हैं, जैसे कि जिया के हाथ पर, जैसे हाथ को पकड़ते हैं ना, बाहों को पकड़ते हैं तो कैसे एक जोर से पकड़ो तो ब्रूस आ जाता है. तो अब आप बताइए, लिविडिटी मार्क. लिविडिटी का मतलब क्या होता है कि जब इंसान गुजर जाता है तो अब उसका ब्लड फ्लो तो कर नहीं रहा है, तो जहाँ ग्रेविटी प्रेशर आता है वहां पर नीले पड़ने लग जाती हैं. अब हाथ के अंदर जहाँ कोई प्रेशर ही नहीं है वहां पर ब्रूस है. उसको ये तो आप देखिए, हद देखिए, बेवकूफ बनाने की हद, बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ बनाने की हद देखिए कि उसको लिविडिटी मार्क कहा जा रहा है. जहां आप जेसन पेन की रिपोर्ट देख लीजिए एक्सपर्ट की, उसने कहा ये मार्क है कि किसी ने जिया को कस के पकड़ा था. इसी तरह से सुशांत की जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, उसकी आंख, एक आंख आधी बंद है, एक आंख पूरी नीली हुई है. अब आप बताइए, आप तो हैंगिंग आप ले आइए, जो हैंगिंग बाय सुसाइड बाय हैंगिंग होता है, उनकी आंखें निकल आती हैं, उनकी जबान निकल आती है, चाहे थोड़ी निकले या ज्यादा निकले, उनकी पूरी कैफियत ही अलग होती है, उनकी शक्ल ही अलग हो जाती है. यहाँ पर तो बेचारा बच्चा सो रहा है, उसकी आंख ब्रूस है, उसके गाल के पर चोट, कुछ ब्रूस सा नजर आ रहा है, और उसका ये पूरा जो वो है, लगता है कि साइड में जहाँ पर जो जैगुलर वेन होती है, जो मेन वेन होती है, उसके पर इतना प्रेशर डाला है, इतना फोर्स डाला है कि वो एक्सफिशिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन हो गया. आजकल फोरेंसिक इतनी एक्सपर्ट है कि आपकी बॉडी के ऊपर भी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, वो भी निकाल दिए जाते हैं. अफसोस, हमें क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी दफना दो, जल्दी जल्दी क्रीमेट कर दो. वलायत में कई साल बॉडीज रखी जाती हैं, कई साल बॉडी रखी जाती है. इसीलिए मैंने दरख्वास्त की थी कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से, कि मैं एक्सह्यूम करना चाहती हूँ अपनी बच्ची की बॉडी. मुझे परमिशन नहीं मिली. मैंने कहा अच्छा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट दे दीजिए, हमको वो भी नहीं मिली. जब हमको मिली तो हमने देखा तो हमने सवाल खड़े कर दिए कि अरे भैया, इसमें तो स्किन की तो की नहीं है, जो करनी चाहिए वो नहीं किया, हमें गुर्दे वुर्दे से क्या लेना देना. तो सर, बहुत कहना चाहूंगी कि बहुत इंजस्टिस हो रही है बच्चे के साथ, बहुत गहरी इंजस्टिस हो रही है, और ये होना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वो आपका लाडला नहीं है, वो किसी और का लाडला है. मेरा तो ऐसा दिल दुख गया कि हम लोग, आई हैड अ ट्रॉमा, जैसे कि मुझे लगा कि मेरा बच्चा चला गया. मैं अभी भी मेरी आंखें भर आती हैं, मेरा दिल भर आता है. मैं अभी भी I just can't tell you, Sunil. I cannot tell you how it reminded me. How it reminded me all the conspiracy, how it reminded me now what the police is doing, how it reminded me now what diversion. पुलिस इतनी desperate हो जाती है, अरे तुम भी आओ, तुम भी कुछ बोलो, अरे तुम ये बोलो, अरे तुम ये, अपने आप को बचाने के लिए. क्यों? Because they have been put under pressure to look the other way. Police is not there to police us. Police is there to police others who are putting pressure on them.
And what about the family? फैमिली से तो बचाओ। मैं आपको बता रही हूँ 5 महीने के बाद मैं कोर्ट में गई थी, और जब मैं कोर्ट में गई थी तब भी मैं बहुत हिल रही थी सर। मैं 5 जुलाई को मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे दिल का दौरा पड़ गया था। मैं 4 दिन के बाद कोलैप्स हो गई थी। मैं जिस तरीके से गुजरी हूँ शायद उसकी फैमिली भी गुजर रही होगी। फैमिली से अभी कुछ बात ही जो उनकी खामोशी when a parent is silent, God is speaking through us. We are the words. हमारे दिमाग में ऐसी बातें नहीं आ जाती हैं, आसमान से आती हैं बातें। शास्त्रों में आसमान से उतरे हैं शास्त्र। We are nobody to invent anything. मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ यार वो आपका भी बच्चा है, आपका भी लाडला, वो हिंदुस्तान का बच्चा है। उसने सबको हंसाना चाहा, उसने सबके दुख को अपना दुख समझना चाहा, तभी तो वो एक्टर था ना, तभी तो वो इतना नामा जाना एक्टर था। जलन खा गई, हसद खा गई, कंपटीशन खा गया, कुछ भी हो वो एक पढ़ा लिखा आदमी है। ही नोस हाउ टू डील विद इट। यूनिवर्सिटी गए हैं ये लोग, घनचक्कर जो कहते हैं कि डिप्रेस्ड है और सुसाइड कर लिया है, जाए यूनिवर्सिटी जाए और सामना करें, किताबों को 24 घंटे पढ़ें और सामना करें प्रोफेसर्स का और अपने पेयर का, तब जाके पता चलेगा कि क्या कंपटीशन होता है। And we were going to NASA. We were planning to go to NASA. बताइए। Buying a land on the moon. वो इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया 7th रैंक था, BCS दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उसने 4th ईयर में जाके ड्रॉप आउट लिया है, ज्वाइन फिल्म। उसके बाद वो गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे टाई अप कर रहा था, वो लेडी वुमेन गर्ल्स बच्चों के लिए बहुत चीजें कर रहा था। वो इजराइल का टूरिज्म एम्बेसडर था, और फिर कहा कि वो डिप्रेस्ड। अब आप बताइए कितनी घटिया बात है कि इतने होनहार इंटेलेक्चुअल को आप एक अपने लेवल पर लेकर आते हैं। मैं तो कहती हूँ जो ये कह रहा है वो उसको अपने लेवल पर लेकर आ रहा है। You understand me? I am very saddened. आज अगर मैंने उसकी ये जो फिल्म देखी ड्राइव, I thought कि अगर नेक्स्ट बॉलीवुड का कोई हॉलीवुड में नाम जाना एक्टर होता तो वो सुशांत होता, नाम जानी एक्ट्रेस होती तो वो मेरी बेटी होती। आज प्रियंका ने भी ग्लोबली अपना नाम पैदा कर लिया। हमारी बच्ची का हम इंसिडेंट बताते हैं कि बहुत फेमस डायरेक्टर है पैन नलिन, जिन्होंने समसरा बनाई थी, बहुत ही $multi-million की। वो आए उसके पास में अप्रैल का महीना था कि मुझे आपके साथ फिल्म बनानी है जिया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे मैनेजर से बात कर लीजिए। उनका मैनेजर कहता है कि जिया तो बहुत बिजी है। अब आप बताइए, जिया तो बहुत बिजी है, उसके पास तो डेट्स नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आपका जो हॉलीवुड का एक्टर है ना उसको भी हमारी बुक्स में ले आइए ना, हम आपको जिया की डेट्स दे देंगे। ये तो हालत है हमारी बच्ची की। और हमारी बच्ची के पास 3 फिल्में थी। सीबीआई ने तो खुद साबित कर दिया ना, अपनी सीबीआई की अपनी चार्जशीट सुसाइड को सपोर्ट ही नहीं करती। मैं तो एक एक बात आपको खोल के बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे। तो देखिए सीबीआई के उस ऑफिसर को लीजिए जो डरपोक नहीं है, जो दबाव में नहीं आ सकते। बंबई शहर में ये केस होगा तो डेफिनेटली ये भी ऑफिसर्स होते हैं, इनकी भी बीवियां होती हैं, इनके भी बच्चे होते हैं, ये भी थ्रेटेंड हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सबके सब करप्ट हैं, सबके सब किसी ना किसी दबाव, किसी ना किसी वजह या कोई ना कोई तो होगी मजबूरी कि जिस वजह से वो अपने काम को छोड़ के उनका काम करने लग जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? मैं तो कहती हूँ दोनों के डिस्क्रिपेंसी निकाल जो अभी लूप होल्स हैं उनमें से कुछ लूप होल्स को तो सीबीआई एक्सपोज करेगी सीबीआई। और किस लिए? उनकी फ्लैगशिप है। और फ्लैगशिप किस लिए? अगर वो कहते हैं वी आर कॉम्पिटेंट इनफ विद एफबीआई, जो दुनिया की मानी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है,
और सीबीआई इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट इनफ। उनके देखिए हमारी एक लिमिटेशन होती है कि हम किसी का घर रेड नहीं कर सकते, कोई चीज नहीं ले सकते, कोई हाथ नहीं लगा सकते। सीबीआई एंड पुलिस हैज गॉट एंट्री इन एवरी एवेन्यू। वो हर चीज पे, हमारी बच्ची का फोन भी ले लिया उसी रात को, आईपैड भी ले लिया, चीजें ले ली, जो कुछ भी उनको हाथ लग रहा था सब ले लिया। आप समझ रहे हैं? साथ में बाद में क्या होता है उन चीजों का? उन चीजों को छुपा दिया जाता है, उन चीजों को दिखाया नहीं जाता है। तो ये सब मैनिपुलेशन, तो जो प्रेशर डालेगा और जैसा ऑफिसर होगा फिर वैसे ही होगा। ऐसा कोई गट वाला हो, ऐसा कोई गट वाला हो जो ऐसा कई केसेस हुए, कई केसेस सॉल्व किए सीबीआई ने। फॉर एग्जांपल जो लास्ट प्रोसिक्यूटर जो हमारे केस में थे, उन्होंने जब अपने इंडिपेंडेंट माइंड से सही सवाल पूछना शुरू कर दिए, जज ने सही सवाल पूछना शुरू कर दिए, बिलीव मी उनको तो निकाल दिया गया, बहाना बदल दिया गया। अरे वो रिटायर हो गए हैं, अरे उनकी तो उम्र ही नहीं हुई है, वो तो 58 ईयर्स के हैं। 58 में कौन रिटायर होता है भाई? आप किसी को, थोड़े लोगों को बेवकूफ कुछ वक्त तक बना सकते हैं, आप सारी दुनिया को सारा वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते। मैम, what would you ask the family? फैमिली को आप क्या कहेंगी? What should they do? देखिए फैमिली डेफिनेटली, देखो मैं तो हिंदुस्तान में रहती नहीं हूँ, मैं तो 40 साल से नहीं रह रही हूँ, तो हम लोग तो बाहर रहते हैं, हमारे लिए तो बहुत टफ रहता है। अब वो बेचारे हिंदुस्तान में रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। सम पीपल, सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड मी? अगर फैमिली कल को कहती है कि नो, आई रादर नॉट फेस द थ्रेट्स और वट एवर द consequences are, ये झूठ कपट एंड ऑल, और मैं एक किनारा कर लेता हूँ, बस अब मैं महादेव पर छोड़ देता हूँ या अल्लाह पे छोड़, that is their call, it is their call, it's purely their call. I got so tired, मैं कहाँ से आ रही हूँ, कैसी कीचड़ है, कैसी धूल है, कैसा कहने को हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मेरे रूट्स है, मैं लखनऊ की हूँ, मेरी पैदाइश यूपी की है, मुझे बहुत प्यार है अपने हिंदुस्तान से, मैं अभी तक तड़पती हूँ। The fact is, it is all up to individual. मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं मुंह खोल रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं तो वो कम प्यार करते हैं, नहीं, सबका अपना अपना रवैया है भाई। मैं तो कहती हूँ हर एक ने मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर ये लोगों ने, क्योंकि मैं लड़ रही हूँ, माँ होने के नाते मैं लड़ रही हूँ, ये मुझे लड़ते लड़ते मार देंगे तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी शहीद हो गई, मैं भी शहीद हो जाऊंगी। सो ये मेरा रवैया है, पर मैं खुलासा जरूर करूंगी। तो ये मेरा अंदाज है, ये मेरा अपना नेचर है, तो मैं अपने नेचर को हर एक के नेचर में नहीं डालूंगी। पर ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वो खामोश है तो वो सच्चाई नहीं पता लगाना चाहते। बेचारे सच्चाई चाहते हैं, वो सच्चाई हमसे कह रहे हैं कि तुम क्या कहती हो, तुम्हारे साथ भी हुआ, तुम क्या सोचती हो। मैं तो कहती हूँ मैं वही सोचती हूँ जो हकीकत है, और ये हकीकत है कि तुम्हारे बच्चे को मारा गया है। तुम बोल नहीं सकते, मैं इससे भी हमदर्द हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है, पर एक न एक दिन अगर महादेव ने तुमको हिम्मत दे दी तो तुम भी मेरी तरह वैसी ही बात करोगे। ये हिम्मत की बात होती है, ये जज्बात की बात होती है। कितना जज्बा है, अभी नई नई बातें, 25 दिन ही हुए हैं, हमें तो 5 महीने लग गए थे, हमें भी 5 महीने लग गए थे सर। हम भी दर एक एक्सपर्ट के पास जा रहे थे, एक पैथोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे। कईयों ने तो कहा कि हम तो मूंछ काट देंगे अगर ये होमोसाइड नहीं है। हमने कहा लिख के दे दो, कहते हम लिख के नहीं दे सकते क्योंकि हम तो खुद काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, हम तो नहीं दे सकते। पर लेकिन हम आपको ये जरूर बता दें कि प्लीज आप लड़िए, और ये तो 2000% ये होमोसाइड है। तो यू सी इट, आई विल नॉट count on the family to open them out at this time, क्योंकि उनके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है, ना तो उनके पास तस्वीरें हैं, ना उनके पास क्राइम सीन की, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, कुछ भी नहीं है। हमें तो कलेक्ट करते करते 5 महीने हुए थे ना, केस बंद हो चुका था, बंदा जा चुका था, अक्यूज वाज फिल्मिंग इन हिमाचल, सब कुछ हो रहा था। हमने कहा होने दो, कोई बात नहीं, हमारा भी वक्त है। जब हमने सब कलेक्ट कर लिया,
हमने एक्सपर्ट की ओपिनियंस ले लिए जगह जगह एंड फेमस एक्सपर्ट्स की, तब जाके हमने खुलासा करवाया। कुछ तो सबूत हमारे पास था जो हम जज के सामने रखते, और उन्होंने सोचा कि हम कुछ भी कह दें, जज हमारी सुनेंगे। कि दुपट्टे को कह रहे कि रोप, पहले तो पता ही नहीं किस चीज से पाई गई थी, फिर कह रहे रोप थी, और जहां उनकी खुद की तस्वीरें दिखा रही हैं दुपट्टा है, उनके खुद के ऑफिसर ने दुपट्टा निकाला। मैम फैंस को लगता है कि और कुछ गड़बड़ है, उनको सब पे शक है। बहुत नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा ही गलत है, पूरा ही गलत है। शुरुआत ही गलत है, शुरुआत ही गलत है, और उसका बीज जो बोया गया है वो भी गलत है। पूरा सब कुछ प्लॉटेड एंड प्लांटेड। मैं तो यही कहूँ। फैंस को ये भी लगता है कि उनको सब पे शक हो रहा है, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स को भी शक हो रहा है। देखो, फैमिली मेंबर्स के ऊपर शक कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अब आपको मैं बताऊं, जिस वक्त हमारे साथ हुआ था, हम भी कुछ नहीं बोला। हम तो कह रहे थे कि हमारी बच्ची तो सो रही है, हम तो कह रहे हैं कि हमारी बच्ची सो रही है, अभी उठेगी। आपको कुछ मालूम नहीं है। देखिए, कहते हैं ना कि जिसके पाँव में कांटा चुभा हो वही जानेगा दर्द को, वही जानेगा। अब इस वक्त आप बताइए क्या बोले। मैंने तो इतना भी कह दिया था, हाय अल्लाह, ये किसने मेरी बच्ची को मारा है? तो जो आसपास खड़े थे कहते नहीं, ये तो सुसाइड है। मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम है? अरे उसका नाम ना लेना, नहीं तो ये तुमको भी धर देंगे, तुमको भी इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे, तुमको मार डालेंगे। इस तरह से तो मुझ पर दबाव डाल डाल के मुझे मेरी जबान बंद की जा रही थी, और मैं कुछ बोल रही हूँ तो लिखा कुछ और जा रहा है। तो मैं अपने एग्जाम्पल से कह रही हूँ कि फैमिली के पर तो सबसे पहले ये लोग इल्जाम लगाना चाहेंगे। जैसे मुझ पे कहते हैं, और ये माँ बेटी की लड़ाई हो रही थी। अरे माँ बेटी की लड़ाई हुई थी तो सीसीटीवी दिख रहा है, थैंक गॉड कि दिख रहा है, खुशी खुशी निकल रहे हैं। और उस दिन वो बेचारी आई है और ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, बहन आ रही है, हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम डेकोरेट कैसे करेंगे घर को। तो किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। पब्लिक को जिसको बोलना है बोलने दीजिए। पुलिस को चाहिए अपना सही कार्रवाई करना, कार्रवाई कीजिए, सच को निकालिए। पहले उसको होमिसाइड के एंगल से देखिए, फिर ओवर रूल कीजिए। मैम, आपके एक्सपीरियंस आपको लगता है मुंबई पुलिस इसको अभी भी, अगर मुंबई पुलिस नहीं करना चाहती, क्या सही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? सीबीआई देखिए, सीबीआई के पास में 1.5 साल के बाद हमारा केस गया था। सीबीआई बड़ी रिलक्टेंट थी हमारा केस लेने के लिए, क्योंकि सीबीआई को जरूर मालूम होगा, अरे बाप रे, 1.5 साल के बाद अब तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया होगा, कितना कुछ छुप गया होगा, कितना कुछ। तो सीबीआई आज भी कहती है कि मैडम प्लीज हमारी इस बात समझिए। जब हम वो पुलिस के पास जाते थे, उनको चीजें नहीं मिलती थी। पुलिस, सीबीआई डिड नॉट गेट द वीडियो of the postmortem. They had to go to JJ hospital, pick up the hard drive from there and look into it. It was corrupted. CBI did not get the dupatta. CBI did not even get so many reports. You have got to understand, CBI was also struggling. Then CBI was pressurized. क्योंकि जब मैं गई, फॉर एग्जाम्पल, सीबीआई ने रेड मारी उनके घर में, तो रेड में कुछ पैसे भी मिले। हमारी बच्ची ने पैसे दिए थे, ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था ज्वेलरी के बनाने के लिए। तो हमें सीबीआई कहती है आप आइए, हमारे पास कई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं। जब हम वहां जाते हैं तो फिर सीबीआई कहती है भैया हम पे तो बड़ा प्रेशर है, हमें बोला जा रहा है कि इसको हाथ मत लगाओ, इससे सवाल ना करो, तो हम क्या करें? तो अब आप बताइए इस बात अगर जल्दी ये केस सीबीआई को दे दिया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। मैं तो कहती हूँ कि फौरन ही दे देना चाहिए, और ऐसी सुपरविजन होनी चाहिए जैसे हाई कोर्ट की, या कोई ऐसी एसआईटी फॉर्म करनी चाहिए जिसमें लोग ऐसे नहीं है जो बहक जाएंगे, जिनके अंदर गट है, जिनके अंदर सच्चाई को बाहर निकालने का मादा है, जो बोल्ड है। कई केसेस हुए हैं। जो हमारा प्रोसिक्यूटर था पिछला, he had done a case which was under 306 same abatement, but later on he found out that it was a case of murder. उनको भी बड़े डेथ थ्रेट्स आते थे, लेकिन you know he was very bold, he was stuck by his guts and he opened the case and he got victory. उन्होंने खुलासा कर दिया। उनको भी पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा था, उनके ऊपर भी बहुत साइलेंस करने का कि हम ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, बट वो नहीं हिले ना।
तो ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताई है अपने एनालिसिस से, जो सिमिलैरिटीज मैंने देखी है, 2000% वो बच्चा मारा गया है, वो बच्चे को साइलेंट कर दिया गया है, हर चीज प्लान कर दी गई है, और अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, बोलो वो डिप्रेस था, बोलो ये था। वो नहीं बताया जा रहा कि इसके राइवल्स कौन थे और इसके राइवल्स उसके साथ में क्या कर रहे थे, उसके साथ उसको आउट ऑफ द वे करना चाहते थे। क्योंकि जब ये टैलेंटेड आदमी सब कुछ ले लेगा, ये तो भैया बहुत बड़ा, ये तो हॉलीवुड का ही नामा जामा जाना एक्टर बन जाएगा, ये तो जेम्स बॉन्ड बन जाएगा। लंबा चौड़ा 6 फुट का बंदा और 11 क्या है वो 5 फुट 11 इंच की तो बेड से लेके वो पंखे की, कोई सुसाइड इस तरह करेगा? जिसको अगर ऐसे प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल्स, देयर आर अदर वेज, अगर वो डिप्रेशन गोलियां खा रहा था तो वो ओवरडोज भी कर सकता था अपने आप को, कोई भी गोलियां खा के ओवरडोज कर सकता था, वो कूद सकता था, वो समंदर गया था, वो गया था वॉकिंग के लिए, वो वहीं पर ही जाके डूब जाता। बहुत से तरीके हैं मरने के। Why he has to find the most difficult and the most stupid and the most which is not even possible? ये भी possibility नहीं थी कि वो मरेगा कि नहीं मरेगा। देखिए बेड है, बेड को धक्का तो नहीं दे सकते ना लटकने के लिए, आप तो बेड के ऊपर ही खड़े हुए हैं, तो सुसाइड कहाँ से हो गया? हमारी जिया बेड के ऊपर खड़ी हुई थी, उसके पांव बेड से नीचे थे, तो सुसाइड कहाँ से हो गया? रिकंस्ट्रक्ट तो करते नहीं है ये लोग, ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। पहले रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, दुनिया के सामने रिकंस्ट्रक्ट कीजिए और बताइए हमें कैसे निशान पड़े हैं। लास्ट क्वेश्चन जी बोलिए। अगर बॉलीवुड में जिया खान, पाकिस्तान की दिव्या भारती नहीं बनी तो फिर क्या करना? सॉरी आपकी आवाज दिव्या खान, कोई सुशांत सिंह राजपूत, कोई दिव्या भारती ना हो, उसके लिए क्या करना? आपका सवाल टूट रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में आगे कोई जिया खान न हो, कोई सुशांत सिंह राजपूत न हो, या कोई दिव्या भारती न हो, उसके लिए क्या करना? देखिए ये तो कोई बात नहीं है कि कोई जिया खान ना हो, कोई टैलेंट ना आ सके, या कोई ये दादागिरी बंद हुई। ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ इस तरह की कोई घटना दोबारा न हो, उसके लिए क्या करना? दादागिरी बंद करवाइए, उसके पर स्ट्रॉन्ग लॉज रखवाइए, और सबसे पहले तो पुलिस को हर कार्रवाई जो है, चाहे वो हकीकत में सुसाइड हो या ना हो, सबसे पहले होमिसाइड की नजर से देखकर उसको पहले रूल आउट कीजिए। हमें बताइए वही कि आपने ये कार्रवाई की है टू फाइंड आउट वेदर इट इज होमिसाइड और नॉट। आप सवाल पूछ रहे, एक जैसे कि दिशा द मैनेजर, वो 14 फ्लोर से गिर गई, केस बंद कर दिया। अब भैया वो क्यों गिर गई, कैसे गिर गई, किस लिए गिर गई, कुछ सवाल नहीं, बस बंद कर दो, खत्म करो कहानी। Look, the police, it's a police's responsibility. They are policing for somebody else. They are not policing for citizens. The police has to amend. They have got to go by their manual. उनका अपना मैनुअल है, आप उनका मैनुअल पढ़िए, उसमें पूरे रूल्स लिखे हुए हैं। आप अपना किट भी नहीं लाते, फॉरेंसिक किट भी नहीं लेके आते। मैंने देखा, जब वीडियो मैंने देखा, पुलिस आई है, हाथ में कुछ नहीं, ग्लव, हर चीज को सबसे पहले हर चीज को हाथ लगा के उल्टा सीधा कर रहे हैं, ऊट पटांग कर रहे हैं, ताकि कोई क्राइम सीन का फर्स्ट पिक्चर ऑफ द क्राइम सीन नजर ही ना आए। वही हमारी जिया खान के केस में किया था इन लोगों ने। या आप ऐसे ऑफिसर्स को भेजते हैं, और जो ऑफिसर कहता है ये तो बुझा, हमें तो बिल्कुल फाउल प्ले लगता है, ये तो मर्डर लगता है, तो उनको कहते तुमको क्या बोला है, तुमको बोला है जो हम बोल रहे हैं वो करो, जो तुम देख रहे हो वो मत करो। तो पुलिस हैज टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। इट इज द पुलिस हैज टू। आज यूके में देखिए, आप ऐसे पुलिस को रिश्वत देके और ये करके नहीं कर सकते।
आज ब्राजील को देखिए, उन्होंने बहुत क्लीनिंग कर दी है अपनी जुडिशरी और अपने पुलिस सिस्टम को। सो ये तो बदलाव लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज एवरी सिटीजन, यू एंड मी, एवरीवन इज इन डेंजर। We actually, it is not our leaders who are ruling, it is the mafia who is ruling the country. And there are lakhs and lakhs of fans of Sushant Singh Rajput who have been fighting for last months of time. Anything that you want to tell? Pardon? There are lakhs and lakhs of fans. लाखों फैन हैं सुशांत सिंह राजपूत के। दिया के बारे में बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं। उनको लगातार पिछले 1 महीने से लड़े चले जा रहे हैं। पता है कि क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन लड़े चले जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि देखिए, आपकी आवाज एक्चुअली सुशांत की आवाज है, जो कह रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता। मुझे याद है मेरी बिटिया का जब जनाजा जा रहा था तो मेरे अंदर उसकी आवाज आई थी, कहती है मम्मी आई हैव नॉट डन दिस। और एक माँ की, आप कुछ भी कह दीजिए, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हुई है। मेरी चीख निकल गई थी, मैंने कहा मेरी बच्ची को मारा गया है, मुझे पूरी कार्रवाई चाहिए। 6 ऑफिसर वहां खड़े हुए थे, 6 ऑफिसर ने कहा मैडम वी विल गिव यू जस्टिस। क्या हुआ 1 महीने के बाद? वो ऑफिसर तो गायब ही हो गए। हम उनके पास गए, उन्होंने तो लोगों की स्टेटमेंट्स बदल दी। तो मैं ये कहूंगी कि प्लीज डोंट गिव। आज मुझे कहते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है, अरे हमें कोई नहीं चाहिए, हमारा सच अकेला काफी है, आपकी कन्विक्शन काफी है। वी नीड टू बी, हमें लाके दिखाइए, एक एविडेंस लाइए कि ये सुसाइड था, एक एविडेंस लाइए ये होमिसाइड था। आप कुछ तो कर भी नहीं रहे हैं, ना इस तरफ देख रहे हैं ना उस तरफ देख रहे हैं, बस मीडिया को बोल रहे हैं जो बोलना है बोलो। ये पुलिस की कार्रवाई होती है। पुलिस का काम हमने किया है, सीबीआई का काम हमने किया है। तो आपसे फैन से यही कहूंगी कि ये जज्बा रखिए, और जिसके पास जो सच है वो डरिए मत, आप सामने लाइए, बिकॉज सच ही खड़ा रहता है एट द एंड ऑफ द डे। और अगर आप छुपा रहे हैं किसी सच को भी, तो मैं सोचती हूँ फिर आप उसके बेचारे इनोसेंट को एक स्कैंडल फतवा दे रहे हैं। Alright मैम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस मच ऑफ टाइम। आप लंदन में हैं और वहाँ वक्त का बहुत फर्क है, फिर भी आपने इतना वक्त दिया, लोगों से बात किया, अपने फीलिंग्स बताए। आई रिस्पेक्ट एंड आई नो व्हाट यू डू। बी स्ट्रांग and hope the fans will get justice and you will also. I am saying the last sentence. You have faith in God, have faith in truth, and then put your trust in the system. System will also hear you. Thank you, ma'am. Thanks, ma'am. Take care, ma'am. Yeah. Please. Bye-bye. Thanks for coming.